اور خبروں کی شروعات کریں گے آج کی بے حد اہم خبر کے ساتھ۔ حریت چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق نے آج 4 سال بعد سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور پھر خطبہ دیا۔ مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ حریت چیئرمین میر وائز مولوی عمر فاروق نے کہا کہ میر وائز کا منصب ہمیشہ مذاکرات، امن اور بات چیت کے حق میں رہا ہے۔ جموں کشمیر گزشتہ کئی برسوں کے دوران بہت سی تبدیلیوں کا گواہ رہا ہے۔ کشمیر کو تنزلی اور تقسیم کا نشانہ بنایا گیا۔ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ہٹا دیا گیا۔ یوٹی کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حریت کانفرنس کے بیانات کو میڈیا میں نشر اور شائع کرنے سے روک دیا گیا۔ میر وائز نے کہا کشمیر کا کچھ حصہ ہندوستان، پاکستان اور کچھ حصہ چین کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی پی ایم مودی نے یوکرین کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے بیٹنگ کرتے رہے ہیں۔ مذاکرات ہی میز پر حل لانے کا واحد راستہ ہے۔ میر وائز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا علیحدگی پسند لوگوں کو ملک دشمن قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری کوئی شخصی خواہش نہیں ہے۔ حریت کے لوگ پرامن حل چاہتے ہیں تاکہ جموں کشمیر مزید مشکلات کا شکار نہ ہو۔ ہم نے ہمیشہ اپنے کشمیری پنڈتوں کو واپس آنے کی دعوت دی ہے۔ ہمارے سینکڑوں رہنما سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہم ان کی رہائی کی اپیل کرتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ مصائب کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جذبات کا احترام کرتے ہیں اور انتہائی صبر و تحمل کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر میں حالات جلد بہتر ہونے کی امید بھی جتائی۔ یہ مسئلہ کسی کے لیے علامتی مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر جموں کشمیر کے عوام کے لیے یہ سب سے پہلے انسانی مسئلہ ہے۔ ہمیں علامتی ذاتی مفاد سے اٹھ کر پہلے انسانی امن اور رشتوں کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوکرین کے حوالے سے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے کہا کہ یہ بہت جنگ کا دور نہیں۔ صحیح کہا کہ ضمن میں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر مسئلے میں کہا وہ تشدد کے خلاف، طاقت کے خلاف تھا، نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ عملی طور پر اس میں شریک بھی ہوئے تاکہ مسائل کا حل مذاکراتی اور مفاہمتی کاروائیوں سے نکالا جا سکے۔ ان راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ مسائل کا حل پرامن ذرائع سے ہی پورا ہوگا تاکہ انسانی تعاون کا زیادہ ہو اور شفاء کے عمل سے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ افسوس، سب افسوس، ہمیں کبھی علیحدگی پسند کہا گیا، کبھی ملک دشمن کہا گیا، کبھی امن دشمن قرار دیا گیا اور نہ معلوم ہمیں کیا قرار دیا گیا۔ لیکن ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میرا کوئی پرسنل ایمبیشن نہیں ہے۔ ہم صرف جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جو کہ ہماری ترجیح ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن ذرائع سے اس کا حل ملے اور یہاں کے لوگ مزید تکلیف کو قربان کریں۔ ہماری اور آسائی سماج میں مختلف مسائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ہر سطح پر پرامن ہم آہنگی چاہتے ہیں، اور کشمیری تاریخ اس کی مثال بھی پیش کرتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک میں ہمیشہ رواداری کے ماحول کو قائم رکھا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، اتنی دیر گھر میں ان کو بند رکھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ 2019 میں ہم میں سے کئی یا تو اپنے گھروں میں بند تھے یا گھروں سے باہر لے کے ہمیں کہیں رکھا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے
ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से अब शुरू करें। और अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं मीर वाइज मौलवी उमर फारूक को जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत देने के फैसले के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और LG मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब हैं उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीर वाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा, हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके। ये है कि आज मीर वाइज साहब रिलीज हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिलीज किया ना, तो हम तो हमेशा कहते थे कोई और नहीं कर सकेगा। अल्ताफ साहब, अमन की फिजा आ रही है, हमने भी देखा कि कल बहुत सारे लीडर्स ने आपको ज्वाइन किया, सेपरेटिस्ट लीडर्स भी है, कितना अच्छा कदम है ये। मैं किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ, देखिए मैं बताऊंगा देखिए मैं कभी किसी को सेपरेटिस्ट नहीं कहता हूँ। हम सब एक सोच के साथ, यहाँ हमारे लोगों का एक सोच था, प्रैक्टिकली शायद वो हमारे लीडरों ने कुछ ख्वाब दिखाए थे जिनकी ताबीर कभी हो नहीं सकी, तो आज अगर हकीकत पे लोग चलना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को सेपरेटिस्ट कहा जाए, किसी को मेन स्ट्रीम कहा जाए। हम सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं और अमन और चैन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अमन चाहते हैं, अपने बहनों के लिए अमन चाहते हैं, अपनी बेटियों के लिए अमन चाहते हैं। तो इससे क्या अच्छा है? अमन जब होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कारोबार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा। इस मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर का अमन बहुत ज़रूरत है। अल्ताफ साहब, पहले मुहर्रम को प्रोसेशन अलाउ किया, आज मीर वाइज को, तो आप हम समझते हैं कि कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। मुझे तो लगता है कश्मीर नॉर्मल है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो सरकारी अफसरान जो हैं, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, मैं उनको भी ऐसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इसमें, लेकिन उनको कहना चाहता हूँ ये दिल से डर निकाल दो। बंद करके मुट्ठी रखोगे तो फिर तो मुट्ठी बंद है, खोल के देखो, कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने अब मन बना लिया अमन पे चलने का। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी ने कहा, मीर वाइस की घर में नजरबंदी से रिहाई के दरमियान जामा मस्जिद और उसके अतराफ में अब तक सूरत हाल पुरअमन है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ये अमन के फायदे हैं और जहां तक समाजी मसाइल का ताल्लुक है, इस तरह के मजहबी स्कॉलर्स का अहम किरदार है। अभी तक की जो खबर आ रही है, बहुत पीसफुली जो है नमाज वहां पे अदा कर दी गई है और लोगों का डिस्पर्सल भी बहुत पीसफुली हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि ये डिविडेंड है पीस प्रोसेस का लोगों के लिए, और ये मतलब ये सब, इसका क्रेडिट जो है सभी लोगों को जाता है, हमारी एजेंसीज को जाता है, जिन्होंने बहुत कैलकुलेटेड मूव करके सारी सिचुएशन को देख के, क्योंकि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। इससे पहले भी आपने देखा जो हर चीज में, स्टार्टिंग विद इस साल की अगर मैं बात करूं तो चाहे टुलिप गार्डन में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग आए, चाहे अमरनाथ जी यात्रा में आए, फिर हमने मुहर्रम का प्रोसेशन देखा, लोग 15 अगस्त में बढ़ चढ़ के आए, G20 का आयोजन हो या इसके अलावा छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, और अभी ईद आने वाली है एक और, तो उसके लिए भी आप सबको, आपके माध्यम से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिला कठुआ में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद जख्मी हो गए। कठुआ से जम्मू जाने वाली तेज रफ्तार ट्रॉली ने लोगट मोड़ के करीब एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे के बाद रिक्शा सड़क के किनारे उलट गया, जिसमें ई रिक्शा ड्राइवर और 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए GMC कठुआ मुंतकिल किया गया। रिक्शा ड्राइवर की हालत नाजुक है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्रिगेड मोड़ पुज्जा, मैं अपनी साइड पर चला, ट्राला लाया, उन्हें नशा किया कि चक्कर किया और ठोकी है पिछू सीधा मेरा ऑटो उठाओ करिया। तेरे को मेरा पैर को बाकी
बाकी बचा ले मैं सारे मैं कंडा ही जड़ में को आई घंटा बिल्कुल सुट गया पुल्ले झाड़ में और तम ही खिंची है ब्रेक मार में से ब्रेक मारने पे 20 फुट आगे करी पी ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੇ ਦਾ 3-4 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੰਨੀ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਆਹੀਂ डिप्टी कमिश्नर अगे भी यही रिक्वेस्ट करने अपने अगे और खासकर NHI वाले कन्नै ਇਹਦੇ पर गौर करन आनगे इस चौंक की आनगे दिखन और ये चौंक की वजह कन्नै के एक्सीडेंट ज़्यादा होवे दे ने क्योंकि चौंक अगर ठीक ढंग कन्नै बनया होवे तो एक्सीडेंट केसेज इन्ने नहीं होने हैं और इन्हें की उस टाइम अगर असें अपनी सलाह दी लोकें लेकिन ये बोलते जो मैप के मुताबिक चलना वही चलना है तो कोई मेटाडोर बता रहे थे वो तो चली गई है इधर खड़ी नहीं हुई एक रिक्शे वाला इसका भी नुकसान हो गया है और 5-4 आदमी बैठे हुए थे सब हॉस्पिटल पे गए हैं फ्लैंग वालों के बुलाया बता रहे हैं ये इधर ही थे बोलते हैं कि मेटाडोर था बाहर का मेटाडोर वाला था। बडगाम टाउन से कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बडगाम मुंतकिल करने के मामले पर सिविल सोसाइटी एचकाम उमुलहका के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीडीसी चेयरमैन गुलाम हसन खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कोर्ट को एचकाम मुंतकिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलाके के लोगों ने कोर्ट को अराजी का अतिया दिया है और इससे इलाके के लोगों को ही फायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा अगर कोर्ट यहां बनता है तो इससे खान साहब, चाढूरा, चरार शरीफ और दीगर इलाके के लोगों को भी सहूलत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अगर बडगाम टाउन में अराजी दस्तयाब है तो बेहतर है वहां ही कोर्ट बनाया जाए, मगर अगर टाउन से कोर्ट को बाहर निकालना है तो एचगाम बेहतरीन जगह है। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है, हाई कोर्ट ने उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमें बडगाम से कोर्ट कम्प्लेक्स को बाहर निकालना है क्योंकि बडगाम में जगह बहुत कम है। तो एचगाम में भी वो लोग आए और हमने 118 कनाल उनको यहाँ से दे दिए। हम सारे एचगाम ना जितने यहाँ लोग हैं एचगाम के एडजॉइंग, इसमें खान साहब भी है, चावड़ा भी है, चारिशे भी है, बडगाम भी है, हम इसको वेलकम करते हैं और एचगाम के लोग खासकर इस स्टेप को ज़्यादा वेलकम करते हैं क्योंकि हमारे 10,000 लोगों की आबादी है और लगभग 4,000 लोग हमारे नौजवान इस वक्त बेकार बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला कोर्ट होगा जो रिंग रोड पर आएगा। ये इस वक्त जो बडगाम जिसको हम कहते हैं बडगाम हेडक्वार्टर 3.5 किलोमीटर के फैसले पर है, सिर्फ 3.5 किलोमीटर बडगाम से ये दूर है और ये ऐसी जगह पर ये वाक़ा है जहाँ पर आपको गुलमर्ग और दद पट्टी भी बोल जाएगी, इतनी अच्छी हसीन जगह है ये। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सबसे नज़दीक ब्यूरो लोगों को हो जाएगा क्योंकि वो रिंग रोड से पहले ब्यूरो के लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद चार शरीफ के लोग पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट चाहती है, वैसे इनकी अभी अंडर प्रोसेस ही है, अभी चल रहा है सिलसिला, अगर ये चाहते हैं इस गाँव में हमने ज़मीन अवेलेबल रखी है और ये नॉन ग्रेजिंग लैंड है, हाँ ये इससे बेहतर है कि काबिल इसके कि लोग इसको ग्रैब करें तो इनके लिए सूटेबल प्लेस है, हम इनको मुहैया रख सकते हैं और गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड है, ये ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से दोहराऊं, बडगाम में अगर ये लेना चाहते हैं प्रॉपर टाउन में, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन पे, अगर वहाँ के लोग कंपनसेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देना पसंद करता है तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि मतलब बडगाम से किसी और जगह पे ले जाना जो सूटेबल लैंड नहीं है, ये अलमिया है हमारे लिए। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जहां स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम, कहा आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है।
मंडी की खोला नाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को पूर्व 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया बांध। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैशट इन वोटिंग से सम्मानित। सिरमौर के गिरेपार इलाके में ऋषि पंचमी पर्व की धूम। दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त। क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना। बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। युवक के पास से 80,000 रुपए लेकर भागे अपराधी। वैशाली के नगवा गांव में शराब कारोबारी को चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। खाईपुरा टर्मर के लोगों को टर्मर श्रीनगर तक सरकारी बस सर्विस न होने से काफी मुश्किलात का सामना है। इस इलाके के लोगों ने सरकार और खासकर महकमे ट्रांसपोर्ट से मुतालबा किया कि श्रीनगर से टर्मर और खाईपुरा तक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए। खाईपुरा के लोगों का कहना है कि बस सर्विस न होने की वजह से तालिब इल्मों के साथ साथ बाकी लोग वक्त पर अपनी मंजिलों को नहीं पहुंच पाते, बल्कि गाड़ियों का इंतजार करते करते वक्त जाया होता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुताल्लिका हुक्काम के नोटिस में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट की किल्लत से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। खाईपुरा के लोगों ने सरकार और महकमे ट्रांसपोर्ट से अपील की है कि श्रीनगर टर्मर्क से होते हुए खाईपुरा तक बस सर्विस शुरू की जाए, ताकि इस दूर दराज इलाके के लोग राहत की सांस ले सकें। बहुत पुरानी डिमांड है कि हमें श्रीनगर से वाया टंगमर्ग खईपुरा गवर्नमेंट बस की थी हमने, तो बहुत बार हम वहाँ पर गए भी उनके डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने बोला आज कल परसों, और हम जब हम लास्ट टाइम गए तो उन्होंने बोला अभी बसें हमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी रोड अलर्ट हुई है, अब जो नई बसें आएंगी उनमें से आपको बसें दे देंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि पूरे इलाके की तरफ से कि यहाँ पर लोग इतने परेशान होते हैं कि दिन भर या सुबह सवेरे शाम को श्रीनगर से किसी को घर आना था तो वो वहीं रात को पड़ता है। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं कि हमें जहांगीर चौक से सीधा वाया टंगमर्ग खईपुरा गवर्नमेंट बस आनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की बस की बहुत ज़रूरत है कि हम पहले से ही इधर हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट को, उनके पास बसें नहीं थी, लिहाजा हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमें एक बस वागुजार टंगमर्ग श्रीनगर टंगमर्ग टू खईपुरा करें, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफिस है, तहसील हेड ऑफिस है, ये टंगमर्ग है। जितने भी हमारे मतलब ऑफिस हैं वो हमारे टंगमर्ग और गुलमर्ग में, हमारे उसी के साथ हमें वास्ता है ज़्यादा गुलमर्ग के। हमारी डिमांड है बस जो है गवर्नमेंट बस का है, टंगमर्ग से श्रीनगर और खईपुरा। बहुत मुश्किलात है, आपकी देखो इधर कितना मुश्किलात है, इधर बहुत मुश्किलात है जी। यहाँ श्रीनगर टंगमर्ग वाया टंगमर्ग टू खईपुरा तक एक ऐसी बस सर्विस चालू की जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है उनका अज़ला हो सके, और हम उम्मीद करेंगे सरकार इस पे गौर करें और श्रीनगर वाया टंगमर्ग टू खईपुरा तक एक बस सर्विस चालू की जाए ताकि उनके जो दीवाना मुतालबात हैं, उनके मुश्किलात हैं, उनका अज़ला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं खईपुरा टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। मरकजी सरकार की स्कीम के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम ने आयुष्मान बोन एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। बीएमओ और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस सेंटर का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना, उनका इलाज मुआवजा करना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम ने इस मौके पर कहा कि इस आयुष्मान के तहत एक मुहिम भी चलाई जाएगी। बीरवा में लोगों ने इस सेंटर के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। चल रहा है इस वक्त आयुष्मान भवा, उसको बेसिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक इवेंट लॉन्च किया था वर्चुअल मोड में ऑन 13th ऑफ दिस मंथ, 13th सितंबर को।
उसी दिन ऑनरेबल एलजी ने भी फिर इवेंट लॉन्च किया वर्चुअल मोड में आयुष्मान भवा के तहत, और कुछ ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक भी अवेयरनेस देनी है लोगों को, अगर रजिस्टर भी करना है उसमें तो। लेकिन आज उसी का एक कंपोनेंट ये है कि हमको CHCs के साथ जो मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस को टाई अप करना है CHCs के साथ। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जैसे CHC में कोई एडवांस्ड फैसिलिटी नहीं हो सर्जरी की, जैसे किसी को कोई एडवांस्ड प्रोसीजर है जो टर्शरी केयर में हो जाएगा उसके लिए हम डॉक्टर साहिबान लाते हैं, सीनियर फैकल्टी जो मेडिकल कॉलेजेस के, हमको खासकर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को मिला है सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना, उसके साथ टाइप, उसके साथ हमने टाइप किया। वहाँ से आज हमारे महकमे देही तरक्की, महकमे सियाहत, म्यूनिसिपल कमेटी करगिल और AKTTA के इश्तिराक से LOC बेथेंग, उमचिक थंग, LOC व्यू पॉइंट, हंडमैन बरोक के करीब सियाती मुकामात पर सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सरपंच शिल्ची के अलावा दीगर अफसरान, गांव वालों और रज़ाकारों ने मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आबी ज़खायर और मुख्तलिफ मुकामात से कचरे के अखराज पर खुसूसी तवज्जो दी गई। DPO ने अपने इर्द गिर्द सफा का ख्याल रखने की आवाम को हिदायत दी। बाद-ए-अज़ा सरपंच ने इस मुहिम के इनेकाद के लिए RDD और दीगर महकमों का शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी इस तरह की मुहिमात मुनक़्क़िद करने पर जोर दिया। सस्ता पकौड़ा के अंदर और ट्रैवल फॉर लाइफ एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। तो इस सिलसिले में हमने क्लीनलीनेस ड्राइव कंडक्ट किया, विच वॉज सपोर्टेड बाय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कमेटी करगिल। तो हमने 2-4 लोकेशंस पे आज काफ़ी जो इनका स्टाफ था रूरल डेवलपमेंट का, म्यूनिसिपल कमेटी का और कुछ लोकल्स भी थे जैसे सरपंच पंचायत के लोग और लोकल वॉलंटियर्स काफ़ी मतलब 30-40 के करीब पार्टिसिपेट किया इस अभियान में। तो हमने हंदुरमान ब्रोक, हंदुरमान मल, शिलिंग से और 2-4 लोकेशन से हमने सफाई अभियान किया और काफ़ी जो गार्बेज हमने कलेक्ट किया और हमने MC के हवाले किया और प्रॉपर डिस्पोजल। आज रूरल डिपार्टमेंट, MC और टूरिज्म की कोलैबोरेशन में हमारे हल्के शिलिक से में एक क्लीनेस ड्राइव का इनेकाद किया, जिसमें DPO मैडम खुद था और टूरिज्म का भी के डिपार्टमेंट से भी और MC डिपार्टमेंट से भी लोग थे। और इन तीनों डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारे हल्के में जो सफाई अभियान जो चलाया, इसमें हमारे गाँव की महिलाएं भी और लड़के और हमारे जो PRI मेंबर हैं, सरपंच पंच, सब उन्होंने मिल के हंदुरमान ब्रोक से लेके बाईपास ब्याथा तक सफाई किया। सफाई से ही हमारे माहौल साफ रखता है तो सारे बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। महकमा जंगलात लद्दाख ने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और FCA बदलते हुए मंजरनामे और आगे के रास्ते पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया। AG लद्दाख के मुशीर डॉक्टर पवन कोतवाल ने मीटिंग की सदारत की। वर्कशॉप के दौरान BRO, ITBP, PWD, CPWD, NHDICL के अफसरान मौजूद रहे। BRO और ITBP के नुमाइंदों की तरफ से सरहदी इलाकों में जंगलात और जंगली हयात की सफाई के मसाइल को उठाया गया। डॉक्टर खुर्शीद आलम खान ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट के पस मंजर और उनकी तरामीम के बारे में बात की। डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज जंगलात कंजर्वेशन तरमीमी एक्ट 2023 और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर उसके असरात पर रोशनी डाली। चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट लद्दाख सज्जाद हुसैन मुफ्ती ने वर्कशॉप के इनेकाद के विजन के बारे में बताया। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ने किया है, तो इसका मेन रीजन है कि जो अभी अमेंडमेंट्स हुई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, हाल ही में हमारे पार्लियामेंट ने पास किए हैं। अब वो नए अमेंडमेंट्स क्या है और उससे जो बॉर्डर जो हमारा जैसे बॉर्डर यूटी हमारा लद्दाख और बाकी बॉर्डर स्टेट्स और यूटीज में, इससे जो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे उसको कैसे पुश मिलेगा, उसमें टाइम कैसे बचेगा और उसमें क्या क्लियरेंसेस अब किनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पहले बहुत सारी क्लियरेंसेस थी अब वो बहुत कम हो जाएंगी और खासकर जो लीनियर प्रोजेक्ट्स है, रोड है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के कैंप्स हैं, तो वो सारा यहाँ पे हमारे यूजर एजेंसी जैसे BRO है, आर्मी है, ITBP है, इनको एक अवेयर करने के लिए कि नए अमेंडमेंट्स क्या है और उससे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे अब आगे ये ईज आउट हो जाएगा, वो सारा डिस्कस करने के लिए ये वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ने।
साहित्य एकेडमी नई दिल्ली और पीजी डिपार्टमेंट ऑफ डोगरी जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख ने डोगरी ज़बान व अदब की तारीख के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। अदब के मैदान में ज़बान के सफ़र जैसे ड्रामा, शायरी और दीगर मुताल्लिक़ा असनाफ पर बहस के साथ दूसरा इजलास मुनक़िद किया गया। मुसन्निफ़ीन ने मुंतखब करदा मौजू के हवाले से अपने ख्यालात और तज्ज़िये का इजहार किया। 2 दिवसीय संगोष्ठी करने का मकसद एक है कि एक बार डोगरी भाषा और साहित्य के बारे में एक पुनर्विचार करेंगे, ताकि इस सिलसिले में युवा पीढ़ी को इस भाषा की उन्नति और साहित्य के विकास के बारे में पता चले। ताकि क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज का दिन में बहुत सारे भाषाएं लुप्त हो रही है समाज से। इसका कारण न केवल हम लोग दोष नहीं देता है कि समाज को, लेकिन एक इंसान की वजह से हम लोग की एक जिम्मेदारी है कि हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा बोलियों को बचा के रखने के लिए हमारा जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के लिए इस सिलसिले में हम लोग ऐसा सोचा है कि जरूर डोगरी भाषा और साहित्य के बारे में हम लोग एक पुनर्विचार करेंगे, ताकि खासकर युवा पीढ़ी के माध्यम से ये और बहुत विकसित हो जाए। भाषा ते साहित्य की जिसलै ਲਈ अस गल करने ते इसका टाइम टू टाइम समय समय पर मूल्यांकन करना बड़ा जरूरी होता है। पहली गल, जिन्ने मर्जी मील पत्थर साबित कर लेते हो, एक समय च एक ग्रुप या एक कुसा संस्थागत तरीके कन्नै किश बड़े लोकें काम किया, उन्हें उस समय दे जिहड़ा काम किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।